तो गाइस मुझे लगता है फिल्म बनाने वाले दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो मेमोरीज के लिए फिल्म बनाते हैं और दूसरे वो जो कंटेंट क्रिएशन के लिए बनाते हैं। अगर आप मेमोरीज के लिए बना रहे हो तो बस अपना क्रू उठाओ, जहां मन करे वहां शूट करो, चाहे वो कितना ही क्रिंज हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कम से कम वो आपको सेटिस्फाई करे, ऐसा कुछ लिखना। एंड जब आप वो कर लोगे ना तो बाद में आपको ही याद आएगा कि यार कितना बढ़िया बनाया था। When you're trying to make content out of short films like the People Obsession, Iron Lung, Backrooms, Talk to Me, they were all made by people who were once making YouTube shorts or short films. Like if you want to see, you can definitely go and check out their page, and you will realize that they have done tons of videos like Obsessions, the actor Curry Baker, Iron Lung, Mikey Player, and Backrooms, Kane Parson, and Talk to Me, Filippo Brothers. I think you should go and check out their page, and you will realize that they were up to something. And you should also even check out our page. We have also done tons of work, like not tons, I would say, just to seeing the edit of my film. Want to make something like this? Firstly, you should do imagine and observe. What does imagine mean and what does observing mean? I will tell you one by one. First step isn't writing, it's observing. Every story around you begins with something ordinary. आप कुछ भी सोचते हो अपनी लाइफ में, ऑब्जर्व करते हो छोटे छोटे इमोशंस, लोग छोटे छोटे जो डिसीजंस ले रहे हैं या छोटी छोटी चीज़ें जो आप ऑब्जर्व करते हो, देन यू रियलाइज दैट ऑब्जर्विंग इज समथिंग दैट विल रियली हेल्प यू इन फिल्म मेकिंग। दूसरा आता है इमेजिन। व्हाट इफ यहाँ ये होता, व्हाट इफ दिस हैपेंस, व्हाट इफ दिस हैपेंस, लाइक यू कैन मेक अ स्टोरी ऑन एनीथिंग। एंड तीसरा चीज जो इमेजिन में आता है, बिकम द कैरेक्टर। वो कैरेक्टर में अपने आप को इमेजिन करिए, वो क्या डिसीजंस लेगा, आप क्या डिसीजंस लेंगे, उसमें घुस जाइए। और एक बात चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी फिल्म के लिए, गिव योर स्टोरी अ थीम लाइक ग्रीफ, होप, फ्रेंडशिप, पावर, हेल्पलेसनेस। दीज आर ऑल थीम्स दैट शुड बी एक्सप्लोर्ड। एंड फिल्म राइटिंग में सबसे हेल्पफुल आपकी हॉबीज रहेंगी। जैसे आई लव ट्रीज, गार्डनिंग, सो मेरी फिल्म समटाइम्स एक्चुअली रिवॉल्व अराउंड ट्रीज और नेचर। वैसे ही आपकी भी कुछ हॉबीज होंगी, उसके अराउंड जब आप अपनी फिल्म लिखेंगे ना, शॉर्ट फिल्म, तो यू विल एक्चुअली फाइंड दैट कि आपने बहुत कुछ अच्छा लिख लिया उसके अराउंड। तो एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म मैं आपको बताता हूँ। द स्टोरी इज अबाउट अ मैन हु अराइव्स एट अ साइट टू कट डाउन 40 trees, but before giving him permission, the officer gives him a condition: grow just one tree from a seed to 2 feet. If he can do that, he can cut all the 40 trees. But बस शर्त यही है कि 1 साल के अंदर उसे 2 फीट का तक का प्लांट करना है। नहीं कर पाए तो नहीं काट पाएगा। एंड एट द लास्ट वी सी वो नहीं कर पाते। Most people don't realize this, but every idea is inspired by another idea in some way. Taking inspiration isn't wrong. In fact, you can take an existing idea and turn it into something even better than people can imagine. For example, मेरी जो पहली फिल्म थी, Dying in a Loop से रिलेटेड उसका कॉन्सेप्ट था। इवन आई वाज लाइक यार ये तो रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, बट डायरेक्टर जो साहब थे हमारे, उन्होंने कहा तो क्या हुआ, हम कुछ तो अलग कर सकते हैं इसमें। एंड आई वाज लाइक लेट्स सी। एंड मैं आपको गाइस बताऊं, जो आउटपुट निकल के आया, इट वाज वे बेटर देन वी वर एक्सपेक्टिंग इट। The protagonist from the past has experienced pain, hopelessness, and is currently trying to die. But the future one is more experienced one who is now regretting the decision of dying and now understands the value of each day that he has got. The past version definitely wants answers, wants the suffering to end, and thinks death is the only solution. But the future version knows he has also experienced endless death, knows the answer isn't that. You know, there is always life. If you are getting a new day to wake up, that's the biggest boon you can get. So my best advice to you will be observe, imagine, write it on diary, notes, WhatsApp or in recording also. और फिर उसे अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो, फीडबैक लो, इम्प्रूव करो। बीच में शायद लगे कि बहुत गलतियां हैं, लेकिन अगर तुम लगे रहोगे तो आखिर में भगवान सब ठीक कर ही देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी पहली ऑडियंस तुम खुद हो, उसके बाद तुम्हारा क्रू और फिर बाकी लोग। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपनी कहानी पसंद आनी चाहिए। अगर तुम्हें ही अपनी कहानी नहीं पसंद आई तो बाकियों को कैसे ही आएगी। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा, फिल्म्स बनाओ और हमें जरूर दिखाओ। आज आप हमारी ऑडियंस हो, कल हम आपकी होंगे। आज आप हमें सपोर्ट कर रहे रहो, कल हम आपको करेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी 24 आवर्स द लास्ट डिलीवरी नहीं देखी तो उन्हें जरूर देखिएगा। अंत में बस इतना कहूंगा कि मैं हमेशा से एक्टर और राइटर बनना चाहता था, और ये सब
इसी वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जेलसी कभी मत रखिएगा। अगर आपका क्रू आपकी मदद कर रहा है और किसी चीज़ में वो ज़्यादा कर रहे हैं तो उन्हें क्रेडिट लेने दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग नहीं मिलते जो आपका हमेशा साथ दें, और अगर मिले हैं तो यू शुड बी थैंकफुल टू देम। I'm gonna recommend you some movies like Arrival, Deadwood Society, Prisoners, Center Woman, 10 Things I Hate About You, and Annihilation. I would definitely want you to watch these movies. They are of different genres, and I think you will learn something from them. And if you are asking my favorite, I think it's Arrival, 10 Things I Hate About You. Yeah, and every movie that is written here is one of my favorite films. अगर आप लोग को लैंग्वेज बैरियर से कोई दिक्कत नहीं है तो यू शुड डेफिनेटली वॉच अ स्पेनिश फिल्म। इट्स नेम इज़ वाइल्ड टेल्स। यू आर सीइंग इट्स पोस्टर। ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है। इट इज़ आई थिंक अ मिक्स ऑफ मैनी शॉर्ट फिल्म्स of different genres. If you will see this, you will get to realize how to write a good short film with comedy, horror and all elements that you really want to put in. And I think आपको देखना चाहिए एक बार ये movie.